Hello everybody, Navjot this side from Global Touch PTE Institute. Guys, this time with a new topic which is summarize spoken text. Guys, आज मैं listening के first section जो कि SST है उसको cover करने वाला हूँ। और जो मेरी previous वीडियो रही हैं जितनी भी उसके अंदर मैंने स्पीकिंग के लगभग सभी सेक्शंस को कवर किया है और जो भी स्टूडेंट्स स्पीकिंग के अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं तो मेरी वीडियोस को वो देख सकते हैं और दे कैन ऑल्सो टेक बेनिफिट फ्रॉम दैट वीडियोस। तो गाइस स्टार्ट करते हैं समराइज स्पोकन टेक्स्ट से। गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो समराइज स्पोकन टेक्स्ट है हमारा ये लिसनिंग का टॉपिक है, लिसनिंग का फर्स्ट टॉपिक है एंड इट ऑल्सो कंट्रीब्यूट मार्क्स टू द राइटिंग सेशन। तो मैं कह सकता हूँ कि लिसनिंग एज वेल एज राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अगर हम अपना लिसनिंग का और राइटिंग का स्कोर इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हमें इस टॉपिक को काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करके आना पड़ेगा एग्ज़ाम के अंदर। और रही बात इस टॉपिक के अंदर जो हमें नोट्स बनाने होते हैं उनकी, तो मैं गाइस आपको बता दूं, जैसा मैंने आपको रिटेल लेक्चर के अंदर बताया था कि हमें ना तो सेंटेंस पिक करना है और ना ही हमें कीवर्ड्स पिक करने हैं, हम पिक करेंगे फ्रेजेस। इन द सिमिलर मैनर ये जो समराइज स्पोकन टेक्स्ट है हमारा, इसके अंदर भी हम फ्रेजेस ही पिक करने वाले हैं और जो टेम्पलेट हम यूज़ करेंगे वो मैं भी आपको स्क्रीन के ऊपर शो कर देता हूँ। दिस इज़ अवर टेम्पलेट। अगर किसी भी स्टूडेंट को अगर अपना टेम्पलेट चेंज करना हो तो वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज मैं आपको समराइज स्पोकन टेक्स्ट का एक क्वेश्चन परफॉर्म करके बताऊंगा कि आपको एग्ज़ाम के अंदर उसे कैसे परफॉर्म करके आना है अगर आप अपना डिज़ायर स्कोर अचीव करना चाहते हैं तो। गाइस इस क्वेश्चन के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि मैं फ्रेजेस पिक करूंगा, तो आप देखिएगा कि मैं फ्रेजेस कैसे पिक कर रहा हूँ। Human activities, such as burning fossil fuels, are warming Earth's climate. The climate crisis has widespread ramifications. Ecologists are worried that many species will become extinct because they might not be able to adapt to a climate change that's faster than most naturally occurring ones. It's possible that some plants and animals could adapt by shifting their habitats towards Earth's poles or towards higher elevations to avoid the heat. Since ecosystems are varied and complex, ecologists can only find out by studying many specific cases. A team of American ecologists explored this possibility for a species of hummingbirds native to North America's west coast, called Anna's hummingbird. The researchers published their findings in 2022. Anna's hummingbirds live in California's lowlands, but migrate upslope into the cooler mountains during the summer. If climate warming continues, the team hypothesized, the birds might adapt by migrating farther up. To test whether this was really possible, the researchers studied the effects of relocating a group of Anna's hummingbirds to a higher altitude. They captured the birds from across their normal range in the Sierra Nevada and moved them to a research station near a mountain peak, 4,000 feet higher than the birds normally venture. They found that the hummingbirds had big difficulties adapting to the lower air pressure and oxygen levels, which caused a drop in their metabolic rate and flight efficiency. Although the researchers still want to study the effects of longer exposure, their tentative conclusion was that it would be hard for the birds to adapt. Their results remind us how complicated an animal's environmental requirements are. ओके, तो ये मैंने गाइस कुछ फ्रेजेस नोट की हैं। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट फ्रेज है हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़, अर्थ क्लाइमेट, अर्थ क्राइसिस, क्लाइमेट चेंज, सम प्लांट्स एंड एनिमल्स, अर्थ पोल्स, मैनी स्पेसिफिक केसेस, लो लैंड, कूलर माउंटेन्स, हायर एल्टीट्यूड, CO2 एंड वाटर, रिसर्च स्टेशन, लोअर एयर प्रेशर एंड ऑक्सीजन लेवल, एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स। तो गाइज मैंने ये कुछ फ्रेजेस नोट की हैं और हमें इन फ्रेजेस को कैसे अपने टेम्पलेट के अंदर यूज़ करना है वो आप देखिएगा। The lecture encapsulated the prominence of human activities, human activities and many specific
केसेस। गाइस ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जैसे ह्यूमन एक्टिविटीज़ हमारा फर्स्ट फ्रेज़ था तो हमें उसके बाद ये वाला ही यूज़ करना है, अर्थ क्लाइमेट। हम अपने अकॉर्डिंग जो हमें सूटेबल लग रहा है हम वो वाली वर्ड्स को, वो वाली फ्रेजेस को आपस में कंबाइन करके लिखेंगे। जैसे मैंने ह्यूमन एक्टिविटीज़ लिख दिया और सेकंड फ्रेज मैंने यूज़ की है मैनी स्पेसिफिक केसेस, जो मैंने यहाँ पर लिखी थी। सो इट्स अप टू मी हाउ आई एम यूजिंग दीज फ्रेजेस। ओके गाइज, मोर ओवर it is evident from the lecture that okay, plants and animals were important. Furthermore, this lecture sheds light on lower air pressure and oxygen level. Okay, she then asserted that the significance of mental requirements and earth poles could not be overestimated. In conclusion, the lecture was very informative for me. तो गाइज़ इसके हमारे जो वर्ड लिमिट होनी चाहिए वो नियर अबाउट 50 to 70 वर्ड्स होनी चाहिए। और अगर मैं आइडियल वर्ड लिमिट की बात करूं कि लगभग कितने वर्ड्स होने चाहिए अगर 50 से प्लस भी हो तो गाइज़ इट शुड बी नियर अबाउट अमंग 60 to 70। ठीक है गाइज़, 60 और 70 के बीच होने चाहिए ये। तो गाइज़ ये मैं पहले वाले इरेज कर देता हूँ। गाइज़ हमारे वर्ड्स हुए 62। मैं गाइज़ इनको रीचेक भी कर लेता हूँ कहीं मेरी कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो गई हो। द लेक्चर encapsulated the prominence of human activities and many specific cases. Moreover, it is evident from the lecture that plants and animals were important. Furthermore, this lecture sheds light on lower air pressure and oxygen level. She then asserted that the significance of environmental requirements and earth poles could not be overestimated. In conclusion, the lecture was very informative for me. Okay guys, तो चेक करते हैं गाइस कि हमें इस क्वेश्चन के अंदर क्या स्कोर मिलता है।